entire party and entire government were putting the restrictions on Gurmeet Ram Rahim, the part of the government, elected mayor, participated into that online satsang and bowing down and raising the chants of Gurmeet Ram Rahim. Was it justified when the Khattar government has put so many restrictions on Gurmeet Ram Rahim's movement as well? He was not allowed to come out from the Bagpat Dera. He was only allowed to address the satsang online, and even he was not allowed to meet anyone beyond his family members. These kinds of restrictions has been put in place by the jail department, by the government, as well as by the court also. And even that is the reason he got the parole for 40 days, just because he is a hardcore criminal. He was involved into the double murder. He was involved into the rape as well. So he was serving the sentence. I beg to pardon. He's still serving the sentence of rape as well as murder all case. All these points are not questions anymore. The CBI court, Amandeep, the CBI court has already said he's a convict out on parole. These are not points, these are not charges which are yet to be proven. He's a rape convict. And despite that, serving politicians and politicians who want to gain power, want to gain that seat, are going and bowing in front of Ram Rahim, who still calls himself Baba but is a rape convict. This love charger guy, Ram Rahim, he calls himself Baba, but the reality stands that he has been convicted for rape. And whether it is the sitting, serving mayor of Karnal, or deputy mayor, or the other politicians from across party lines, BJP, Congress, INLD, NLO, all these leaders, just waiting for a chance to be a part of that online satsang. Such rush, have they shown such rush, Shwesha and Amandeep, to go and meet the people who vote them? Never. When was the last time the mayor went and met her own voters to see the real problems rather than attending an online satsang of a rape convict? Well, absolutely, Abhishek. This is the biggest point. Either any party, they wanted to get the votes of the people, they can go down to the ground, they can go down, knock their doors, and in fact, they can campaign. But what is this alternate they are trying to opt for? That a love charger guy, they are going down to a love charger guy who is a rape and murder convict and considered as a hardcore criminal by the CBI court, a proven fact. He was getting the parole in a restricted manner, and still these all party leaders are trying to highlight him and posing him as self-styled Baba, that he is above everyone and he is ruling the certain group of the people in Haryana. They are the one who is actually making him big. Though all the people have condemned Baba, all the people have condemned this self-styled Baba when he was convicted, and still people don't want to listen him. People has just put him in a grey line. This person is not being considered anymore Baba by the people of Haryana as well. But still, these politicians are not able to understand. Instead of working hard on the ground to prove their mettle, they are just trying to opt for this option with the impression that Baba might gain them the vote percentage in the upcoming elections of Panchayat and the Jila Parishad, which is very much near. In fact, they have sufficient time to knock the doors of their own voters in their own constituencies and the areas. And in fact, they can cater the vote on the basis of the development instead of going down to the Baba, who is a rape and a murder convict. It's the biggest question, and all political parties should take a serious note of this entire incident and take action against all the leaders who have actually involved into this entire online satsang and vote down and singing the chants of the Amandeep, hold on for a second. I'm being joined right now by Naveen Kumar, Deputy Mayor of Karnal. Thank you for joining us here. What is your reaction coming in right now? आपका क्या reaction है? ये जो हुआ है, he's out on parole right now, and at the same time he's getting a hero's welcome. उसको एक हीरो का वेलकम मिल रहा है राम रहीम को. हेलो, हाँ जी, आप मेरी बात सुन सकते हो मिस्टर कुमार? हाँ जी 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 जी. हेलो, हाँ जी,
ये जो हाँ जी, सुन रहा अभी हूँ मैं। हम जो न्यूज ब्रेक कर रहे हैं, ये एक इवेंट हुआ था जहां पर एक सत्संग हुआ था, वर्चुअल हाँ जी। सत्संग हुआ था. ही इज जस्ट आउट ऑन पैरोल. What does this mean for a rape convict to get this kind of hero's welcome? मैं इसके बारे में बताना चाहता हूँ आपको। ये करनाल में एक कमोपुरा में डेरा सच्चा सौदा का नाम चर्चा घर है। तो पैरोल पे आने के बाद जो नाम डेरे के जो अनुयायी थे, तो उन्होंने वहाँ पे एक ऑनलाइन सत्संग हुआ था और जो डेरे बाबा हैं वो वहाँ से यूपी से इसमें कनेक्ट हुए थे लाइव। तो बाकी संगत यहाँ जैसे बैठी थी, तो इसका बस वो लाइव एक उनका वो कंसर्न चल रहा था, सत्संग दिया सुन रहे थे वो लोग। और उसमें ऐसा नहीं था कि भाई सारे पॉलिटिशियंस पहुंचे हुए थे। उन्होंने जो डेरे की एडमिनिस्ट्रेशन है करनाल की, जो लोकल लेवल की एडमिनिस्ट्रेशन थी, इन्होंने क्या नाम है, इन्होंने इनको इनविटेशन दिया था सभी को करनाल से, तो वो गए हुए थे वहां पे। हाँ, आवाज आ रही है? नवीन जी। कुमार जी, नवीन कुमार जी, आवाज आ रही है? नमस्ते, आप भी थे क्या इसमें? आप भी थे क्या सत्संग पे? हाँ, मैं गया हुआ था। नहीं, आप ये रेपिस्ट को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? आप राम रहीम जो है, जो रेप कॉन्विक्ट है, ऐसा नहीं है कि ये रेप अक्यूज्ड है, ये रेप कॉन्विक्ट है, ये अक्यूज्ड है, ये कॉन्विक्ट है, कन्विक्टेड है, मर्डर के लिए चार्जेस है, मर्डर चार्जेस है, रेप चार्जेस है, कैस्ट्रेशन। आप डिप्यूटी मेयर होके कैसे इनको एंडोर्स कर रहे हैं आप? देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ कि आपकी बात ठीक है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ठीक है। लेकिन जो डेरे की एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने सारों को करनाल से जितने भी पॉलिटिकल जो आदमी थे, उनको उन्होंने इनविटेशन दिया था, भाई आइए हमारे सत्संग में आए। तो आप गए क्यों? नहीं, लेकिन आप ये बताइए, आप नवीन कुमार जी, आप बताइए, आप गए क्यों? आप वो तो इनविटेशन देना उनका काम है। जो वहाँ पे जो पब्लिक गई हुई थी, वो हमारे शहर की जनता थी। वो अब हम जो जहाँ हर जगह हमें बुलाया जाता है, तो वहाँ जाया जाता है। नहीं, लेकिन वहाँ पे तो हाथ जोड़ के इसको हाथ जोड़ के बात कर रहे सब लोग। यहाँ पे दिख रहे रेणु बालाजी जो है, यहाँ पे हाथ जोड़ के उनके साथ बात कर रहे हैं। ये क्या बात होती है? वो हाथ जोड़ के वहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे हाथ जोड़ के देखिए, फोन पे हाथ जोड़ के बात कर रहे हैं। ये राम रहीम रेपिस्ट है। ये सर, ये रेपिस्ट है, रेप अक्यूज नहीं है, सस्पेक्ट नहीं है, कन्विक्ट है। ये कन्विक्ट आप नेता होके कैसे कर सकते हैं ये? देखिए, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ। हाँ, अब मान लो किसी ने, शहर की जनता नहीं थी वहाँ पे, उन्होंने अगर सभी को बुलाया तो वहाँ पे वो गए। और बात रही मेयर मैडम की, रेणुबाला गुप्ता जी की, तो वहाँ पे जो उन्होंने वो बात रखी, सिर्फ जो वहाँ पे जो हजारों जो लोग वहाँ बैठे थे, उन्होंने जो अपने व्यूज उनके आगे रखे थे, जस्ट वो बात हुई है वहाँ पे। अदरवाइज इसके अलावा कोई बात नहीं हुई। नहीं, लेकिन आप एंडोर्स क्यों कर रहे हैं? आप आपके ऊपर चार्ज ये है कि आप नेता होके रेपिस्ट को एंडोर्स कर रहे हैं आप। ओके, मैं आपको ये पूछता हूँ, ये सोच लीजिए कि सज्जन कुमार जो 1984 राइट्स का अक्यूज्ड है, सज्जन कुमार आपको बुलाता है, आप बीजेपी के हो, वो सज्जन कुमार आपको बुलाता है, वो अभी जेल में है 1984 राइट्स में। अगर वो बाहर आके आपको बुलाएगा तो आप जाएंगे सज्जन कुमार के इवेंट पे? आप ये तो परिस्थिति और माहौल के ऊपर डिपेंड करते हैं, क्या चीज है क्या नहीं है, कैसे क्या करना है। सर जी, आप रोज सुबह से रात तक आप और बीजेपी, आप सब पार्टियों को क्वेश्चन करते हैं कि अगर ये सोचे कि कांग्रेस या कोई नेता किसी के साथ ये हाथ जोड़ रहे हैं, आप वो फोटो लेके उसको हेडलाइन बनाते हैं। देखिए जनाब, मेरे को एक चीज बताएं, बताइए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बताइए। क्या दूसरे पार्टी के नेता वहाँ नहीं जाते क्या? अरे दूसरा पार्टी के बारे में छोड़ दीजिए ना, आप दूसरे पार्टी के बारे में छोड़ दीजिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, वही बता रहा हूँ, हम सबसे पूछते हैं सर, मैं भी यही बता रहा हूँ, क्या सिर्फ सिंगल क्या नाम है, एक ही पर्टिकुलर पार्टी से आदमी जा रहे हैं? हम सबसे पूछते हैं, हम सबसे पूछेंगे, हम सबको फोन कर रहे हैं, आपको भी फोन करके हम पूछ रहे हैं, आप क्यों गए वहाँ पे? जब हमारे इलेक्शन जा रहे हैं, बाइक पोल जा रहे हैं, इसीलिए उसके साथ हाथ जोड़ रहे थे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इलेक्शंस आ गए या कुछ आ गए, ये तो आप इलेक्शंस आ गए या ये कई दिन से बातें चल रही है, कई मीडिया चैनल्स वाले इस पे वो कर रहे हैं। इलेक्शंस के करके क्या वो अब पता नहीं पैरोल देना या वो कुछ भी करना, वो न्यायपालिका का काम है, वो हमारा या किसी और का काम नहीं है।
अब वो आगे हैं तो उनके अगर एक समागम हो रहा है, अगर शहर की जनता ने वहाँ पे अगर सभी को बुला लिया तो उसमें जस्ट गए हैं। नहीं, ये क्या होता है ना, ये क्या होता है, मैं बोलता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल इस रेपिस्ट जो है ना, ये रेपिस्ट ये आदरणीय रेपिस्ट नहीं होता है, ये रेपिस्ट होता है सर, आज के ये रेपिस्ट होता है और ये मर्डरर है, इज कन्विक्टेड ऑफ मर्डर। आप एक मर्डरर और रेपिस्ट को हाथ जोड़ के उनके साथ बात कर रहे हैं आप क्या मैसेज दे रहे हैं जनता को, आप ये बताइए हमें। इसमें दिख रहे हैं, आप भी दिख रहे हो, रेणु बालाजी भी दिख रहे हैं, हाथ जोड़ के बात कर रहे हैं सर, हाथ जोड़ के आप रेपिस्ट और मर्डरर के साथ बात कर रहे हैं। इतना क्यों पावरफुल है ये लव चार्जर बाबा रेपिस्ट? देखिए वो कितना पावरफुल है, आपका पॉलिटिकल कंपल्शन क्या है? नहीं, आपका पॉलिटिकल कंपल्शन क्या है बताइए आप आज नवीन कुमार जी, पॉलिटिकल कंपल्शन क्या है? कुछ डर है पॉलिटिकल पार्टीज को कि ये रेपिस्ट को कुछ बोलेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा और वोट्स नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं भाई, ऐसा डर वाली तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि भी डर है या किसी वो डर भय में थोड़ी कोई आदमी जीता है अपने आप में सही नहीं है ऐश्वर्या भी नवीन कुमार जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आप क्या बता रहे हैं नवीन कुमार जी? आपको जनता ने डिप्टी मेयर बनाया, करनाल के डिप्टी मेयर हैं आप, है ना? डिप्टी मेयर आपको जनता ने बनाया, हाथ आपको जनता के सामने जोड़ने चाहिए, हाथ आप रेप कन्विक्ट के आगे जोड़ रहे हैं। ये तो कोई ऐसा आदमी भी नहीं जिसके ऊपर एलिगेशन हो, मैं आपको ये तो कॉन्विक्ट है, सीबीआई ने बोला। हाँ मेयर साहब बताइए। मैं उस चीज को, आपकी बात को बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन जो हमें पब्लिक ने अगर डिप्टी मेयर बनाया है तो आप मानते हो ना कि आपने गलत किया? तो आप मानते हो ना कि आपने गलत किया? डिप्टी मेयर की तरह आपने गलत किया। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत किया, मैं ये कह रहा हूँ तो आप कह रहे हो आप सही थे, उसी ने हमें वहाँ पे कॉन्वेंट के सामने जाना सही है? भाई शहर की पब्लिक थी, शहर के आदमी थे, वो आए भाई, आप हमारे समागम में आए तो हम चले गए। अब आप जनता को ब्लेम कर, मेयर साहब, जनता को ब्लेम नहीं कर रहा जी, आप डिप्टी मेयर हैं, जो आप डिप्टी मेयर हैं, आप डिप्टी मेयर हो करनाल के जी, और आप जनता के ऊपर ब्लेम डाल रहे हैं? हम ब्लेम नहीं डाल रहा हूँ जनता के ऊपर। जनता ने आपको जबरदस्ती भेज दिया क्या? मैं आपको बड़ा क्लियर कह रहा हूँ, आप बातों को, शब्दों को थोड़ा ऐसे रख रहे। मैं आपको बड़ा क्लियर कह रहा हूँ भाई, जो हमें इन्विटेशन देने आए वो भी शहर की जनता थी, कोई वो बाहर से नहीं आए थे। मैं जस्ट ये कहा, मैं कोई ब्लेम नहीं किया उनके ऊपर। पता नहीं ये सत्संग किसका है, तो किसका सत्संग था ये? आप ये बताइए किसका सत्संग था ये? आपका लॉजिक ऐसा है नवीन कुमार जी, ये सोचिए कि ये कांग्रेस पार्टी का इवेंट है और सोनिया गांधी ने इनवाइट नहीं दिया, लेकिन क्या बोलते हैं, थरूर ने इनवाइट दिया, इसीलिए आप गए। ऐसे लॉजिक कैसे होता है? आप बोल रहे हैं सत्संग तो इसका ही था ना, राम रहीम रेपिस्ट राम रहीम का सत्संग है। दे रहा हूँ हाँ, आप जो आपकी बात के ही जवाब दिया, आपने कहा भाई आपको पब्लिक ने चुन के भेजा, तो मैं यही बताया है कि जिस पब्लिक ने हमें इनविटेशन दिया वो भी करनाल की थी। अरे आपको मैं जस्ट ये बता रहा हूँ, आप नेता अच्छा, हो एक के आपसे स्ट्रेट सवाल निरंजन, लेट्स जस्ट आस्क हिम वन स्ट्रेट क्वेश्चन। निरंजन, लेट्स जस्ट आस्क हिम वन स्ट्रेट क्वेश्चन। नवीन जी, सीधा आपसे पूछ रहा हूं, करनाल की जनता से अगर आज आप निकल जाएंगे, अगर हमारे रिपोर्टर्स रिपब्लिक के और रिपब्लिक भारत के हरियाणा में निकल जाए, तो आपको लगता है आज मेजॉरिटी हरियाणा की जनता बोलेगी आपने ठीक किया? जरा अपने अंतर्मन में झांक के देखिए नवीन जी, रेप कॉन्विक्ट के यहां जाना ठीक हो सकता है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं बिल्कुल मेरे से पूछ रहे, सीबीआई ने कहा वो रेप है, जेल में था, बाहर आया है पेरोल पे। जी बिल्कुल पैरोल पे आया है, तो मैं पैरोल पे ही आए हैं वो। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ भाई, हमें तो जैसे एक जस्ट इन्विटेशन आया कि भाई करनाल से भाई लोग आए यहाँ पे, 15-20 आदमी आए, भाई आना है हमने, तो जस्ट उसलिए हम चले गए। कल को नवीन जी आप ये कह रहे हो कि कल को कोई गैंगस्टर, कोई रेपिस्ट, कोई भी अगर 5 लोग भेज देगा आपके पास एक इनविटेशन कार्ड लेके, तो नवीन जी डिप्टी मेयर ऑफ करनाल चले जाएंगे बिना देखे? एक मिनट, कल तक तो नेता ये कहते थे देखो जी कोई आया, क्वेश्चन ये भी है, सेल्फी लेके चला गया, समवन केम सेल्फी लेके चला गया। कल को कोई गैंग ऐश्वर्या, क्वेश्चन ये भी है कि ये परोल पे सत्संग का परमिशन कौन दिया इसको? सत्संग का परमिशन कौन देते हैं?
इसका जवाब आपको जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, जेल प्रशासन है, वही दे सकता एडमिनिस्ट्रेशन है। क्योंकि- हाँ जी, वेरी नाइस आंसर। एडमिनिस्ट्रेशन किसका है सर? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन तो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने क्या नाम है देखना है, उसने ये लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन करना है, सारी चीज करनी है। तो अगर वो नहीं, लॉ एंड पैरोल ऑर्डर पे मेंटेन पैरोल करना है, नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन ये तो ने बड़ा देना है। स्टोरी है, ये बड़ा स्टोरी है। नवीन कुमार जी आपको लाइव भी लेके आएंगे हम, कई देर पे लाइव भी लेके आएंगे। हमें ब्रेक, छोटा सा ब्रेक लेना चाहिए अभी। ऐश्वर्या जी हमारे साथ बने रहिए, छोटा ब्रेक के बाद breaking story on Republic. All channels now following, playing catch up on a story broken by Republic Bharat. Rape convict Ram Rahim, aka Love Charger Baba, who caused riots in Mohali. You will remember those pictures a few years back when he was exposed. Riots went in behind bars, kicking and screaming, on parole, holds a satsang. The mayor and the deputy mayor and leaders join him. What are they afraid of? Stay tuned.